Hello and welcome. Very good afternoon. You're watching Mirror Now. I'm Afrida Rahman Ali, bringing you the latest on the farmers' protest, which has only aggravated now with major showdown between the protesters and the police in several locations. We are tracking all the border areas where this showdown, even as we speak, in many places is currently on. There's a massive face-off at the Delhi borders. Farmers from 3 states of Haryana, Punjab and Uttar Pradesh have been blocked while they were marching towards the national capital. Farmers are protesting against the centre's farm laws, demanding that they should be withdrawn. There were dramatic scenes at the Punjab-Haryana border this morning as cops used water cannon and tear gas at the protesting farmers in an attempt to disperse the crowd. Delhi police has denied permission for protest, citing COVID reasons, and sealed the borders with UP and Haryana. Meanwhile, Chief Minister Arvind Kejriwal has tweeted saying that the farmers are being denied their fundamental right to protest. This is what Chief Minister Arvind Kejriwal has to say, that he is in favor of the farmers holding a peaceful demonstration and he is against the idea of blocking them at the Delhi border. Now, this is interesting that the Delhi government, it seems, is in favor of this protest, whereas the central government and the Delhi police, of course, comes under the centre. The Delhi police is not allowing the protesters to move into the capital city, but the Delhi government, the head of the state, Chief Minister, in fact, is saying that they should be allowed to hold a peaceful demonstration. The reason that is being cited for blocking the protest, or the protest march rather, is that the situation in the capital is grim in terms of the COVID status, and therefore such a large inflow of people and a large gathering of farmers at a time like this cannot be allowed, which is why at all the 6 major entry points to the capital city, there is police deployment which is preventing the movement of the protesters. So this is the important development here, that the Delhi Chief Minister, also of course the Punjab Chief Minister, coming out in favor of the protesters and the farmers, saying that they should be allowed to make a peaceful demonstration. So remember, this is a protest actually that has been brewing since September. The farmers first called their protest against the 3 farm bills. On the 19th of September, the 3 farm bills were cleared by the parliament. And on the 20th of September is when farm organizations started blocking roads, and the protests, in fact, first started erupting. Tractor rally protests were organized in Delhi from 20th of September onwards. In fact, 1st of October is when you had the first Punjab farmers blocking the rail tracks, and from there onwards there has been no let up. Punjab government in fact passed bills to negate the centre's laws, which of course would not have legal validity given the way that the state and the centre division of powers are worked out in this regard. Power cuts in Punjab as coal runs out on the 3rd of November. So farmers agree to hold talks with the centre in 15 days. On the 21st of November, it was decided that farmer representatives will have further discussions with the centre. On the 23rd of November, 2 months of blockade of goods train was released in Punjab, and the centre invited farmers for a second round of talks on the 3rd of December. But even before that, now you have this massive protest that is currently happening. 3rd of December, the talks are already lined up, but the Farmers Union, of course, now deciding to move towards the capital city in a Delhi Chalo protest. One farmers union have blocked tracks in Amritsar earlier on the 24th of November. This happened. And today the Delhi Chalo Andolan has picked up momentum. From various entry points, farmers are moving towards the national capital, but they are being stopped by the police force. Well, in fact, let's go across to Abhimanyu Kohar, National Coordinator of the Rashtriya Kisan Mahasangh, joining me on the phone line. Abhimanyu Kohar, thanks for joining us this afternoon. I want to begin by asking you that while you have your valid concerns and grievances, there's already a meeting lined up with the centre on the 3rd of December. Why is it that you feel it's necessary to have this Delhi Chalo Andolan at a time when the COVID situation in the capital is extremely grim? देखिए,
इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की ये है कि ये प्रोटेस्ट आज से नहीं चल रहा है, पिछले 3 महीने से चल रहा है। तो पहले तो सरकार कुंभकर्णी रूपी नींद सोती रही और जब हमने कार्यक्रम तय कर दिया तो उस समय सरकार कहती है कि हम 3 दिसंबर को बात करेंगे। उससे पहले 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उस बातचीत में कुछ नहीं निकला। हमारे वहाँ पे किसान प्रतिनिधि जब जाते हैं तो सरकार के प्रतिनिधि हमें वहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाने लग जाते हैं कि हमने किसानों के लिए ये किया, वो किया। ये तो हम जानते हैं ना, आपने क्या किया और क्या नहीं किया, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। मुद्दा जो इस समय है कृषि कानूनों का, कृषि कानून वापस लिए जाए, ये हमारी डिमांड है। हम उससे जरा सा भी पीछे नहीं हटेंगे। कृषि कानून वापस हो, जो बिजली बिल 2020 जो अभी लाया जा रहा है उसको तुरंत रद्द किया जाए और किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। ये हमारी मांगे हैं। अब सरकार को ये सीधी-सीधी मांगे पता है कि ये हमारी मांगे हैं, सरकार इनको पूरा कर दे, हम आंदोलन वापस ले लेंगे। अदरवाइज और किसी चीज पे तो बातचीत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है और कोई जरूरत ही नहीं है कोई। तो हमारा बिल्कुल साफ ये है। और आप देखिए कि जब सरकार को पता थी कि 26-27 को हम दिल्ली कूच कर रहे हैं, उसके बावजूद सरकार 3 दिसंबर की तारीख सरकार देती का है। जो तर्क है वो तो ये कह रहे हैं कि पूरी जो रिफॉर्म जो बिल्स लाए गए हैं वो किसानों के इंटरेस्ट के लिए है कि उनको हायर प्राइस मिले अपने प्रोड्यूस के लिए, उसको फैसिलिटेट करने का आइडिया था। ये नहीं कि किसानों की इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाने का कोई भी इरादा था। सरकार का इरादा तो आप मानते हैं कि इट वाज टू गिव अ बेटर प्राइस फॉर द फार्म प्रोड्यूस। कि हम स्पष्ट हैं इस मामले में। सरकार का जो इरादा है, सरकार का इरादा ये है कि खेती को इतना घाटे का सौदा बना दिया जाए कि किसान अपनी जमीन बेचने पर मजबूर हो जाए। उसके बाद बड़े बड़े कॉरपोरेट हम किसानों की जमीन खरीदेंगे और हमें अपनी जमीन पे मजदूरी करने पर विवश होना पड़ेगा। मैं आपको 2 बातें कहना चाहता हूँ। हम कम से कम 10 बड़ी बड़ी रैलियों में हम ये खुला चैलेंज दे चुके हैं, हम इन्विटेशन दे चुके हैं बाकायदा बड़ी बड़ी पंचायतों में कि भाई बीजेपी के प्रतिनिधि आए और किसानों के बीच में आके इस मुद्दे पे हमारे साथ बहस करें। हम इन कृषि कानूनों के नुकसान गिनाएंगे, मोदी सरकार के मंत्री आगे कृषि कानूनों के फायदे गिनवा दें। तो इसी मकसद से तो आपको बुलाया गया है 3 दिसंबर को, आपकी बात सुनने के लिए, आपके साथ जो कंसल्टेशन डेलिब्रेशन के लिए ही तो आपको बुलाया गया है। तो क्यों आप उससे पहले ही इस तरह का प्रोटेस्ट मार्च करना चाहते हैं? आई वुड जस्ट लाइक टू ब्रिंग इन केदार सिरोही ऑल्सो, फार्मर एक्टिविस्ट हु इज ऑल्सो विद अस। केदार सिरोही जी, आप बताएं आपकी क्या राय है इस मामले में, क्योंकि अभी जो समय है कोविड के वजह से काफ़ी डेलिकेट समय है। सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि इस वायरस का स्प्रेड ना हो और पब्लिक गैदरिंग्स ना हो। ऐसे समय पे इस तरह का लार्ज स्केल प्रोटेस्ट, और क्या आपको लगता है कि ये सही तरीका है? क्योंकि बातचीत तो हो सकती है, देयर इज ऑलरेडी अ मीटिंग लाइंड अप ऑन द 3rd of December विद द फार्मर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द सेंटर। देखिए, मैं जो मेरे साथी अभिनव जी ने जो कहा है, मैं उनकी बात से पूरा सहमत हूँ। और ऑल फार्मर ऑन द सिंगल थॉट्स, हम लोगों को ये तीनों जो अध्यादेश है ये वापस लेना है। रही बात जो कोविड की बात की जा रही है, तो ये सरकार को पता नहीं है। हमारा किसान का मूवमेंट आया तो आज कोविड का बात हो गया। अभी 15 दिन पहले पूरे देश में इलेक्शन था, देश में पूरे नेताओं की रैलियां चल रही है, हजारों लोगों की शादियों में इन्विटेशन हो रहे हैं, तब आपको कोविड का नहीं आया। आपका कोविड का है सरकार को, तो वो सुरक्षा का इंतजाम करे, वहां पर मास्क बांटे, किसानों को सैनिटाइजर दे। ये पानी की बौछार देने का अधिकार किसने दिया? आंसू जो गैस का गोला है वो छोड़ना कितना घातक है लोगों के ऊपर, वो छोड़ा जा रहा है। ये किसने किया? 10-10 मेट्रिक टन के, 8-8 मेट्रिक टन के आपको पत्थर रोड पे रखने की क्या जरूरत थी? वो जो तार है जो पशुओं के लिए बैन कर दिया गया, वो ब्लेड वाले तार जो हम लोग फेंसिंग नहीं कर सकते, उस तार से आप हमारी रास्ता क्यों रोक रहे? हम चाहते हैं हमारी नेशनल कैपिटल पे आना, हम चाहते हैं हमारी बात रखना। आप कह रहे हैं 3 तारीख का जो आप बता रहे थे, 3 तारीख को ये बात करना चाह रहे हैं, किसने मना किया है? आप हमको दिल्ली आने दीजिए ना, हम बात करेंगे। जब तक हमको दिल्ली क्यों नहीं आने दिया जा रहा? पहला सवाल, आखिर इतना फोर्स हम पे क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, 5 की तारीख में भारत का जो किसान का बेटा है, एवरीवन इज एजुकेटेड, दे नो देयर राइट, दे नो देयर बेनिफिट एंड लॉसेस। हमको पता है क्या होना है। इनका जितना आईएएस डिग्री लेके बैठा है, इनका जितना नेता डिग्री लेके बैठा है, उसमें प्लस हमारा एक डिग्री और कर दीजिए। हमको सारा चीज समझ में। अगर इतना ही रिवोल्यूशन वाला अगर ये अमेंडमेंट बिल होता, तो मैं मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, 2.25% से मंडी टैक्स 50 पैसा क्यों किया?
उनको खुद को दिख गया कि ये मंडियां खत्म होने वाली है। अगर ये इतना अच्छा था तो जो बिहार का बात है, बिहार में 15 साल में क्यों नहीं चेंज आया, क्यों नहीं रेगुलेशन हुआ? आज पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी किसान नेता हैं वो पीसफुली मार्च कर रहे हैं टुवर्ड द दिल्ली। हमारा कैपिटल है, यहाँ पर सारा चीज है, हम लोग अपना बात रखना चाहते हैं। नहीं, पीसफुली कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हम विजुअल में दिखा रहे हैं पुलिस के साथ जो है हाथापाई हो रही है कई जगह पे। देयर इज अ मेजर शोडाउन। ऐसा तो नहीं है कि पीसफुली हो रहा है, क्योंकि पुलिस को काफ़ी कंट्रोल करना पड़ रहा है क्राउड्स को, और इस तरह के क्राउड्स अभी के समय में बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जो सरकार का तर्क है, मैं उनकी तरफ से बोल रही हूँ कि उनका ये तर्क है कि जो मिडलमैन है, जो पावर ब्रोकर है, उनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है मंडी सिस्टम के हटने से, और जो गरीब किसान है उनको कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना मिडलमैन को हो रहा है इस रिफॉर्म बिल्स से। अच्छा, आप ये बता दीजिए कितने इनके लोगों ने जाके गरीब किसानों से बात की है? ये तो फूट डालो राज करो की नीति है, लोगों को डाइवर्ट करने की नीति है कि किसानों को तकलीफ नहीं हो रही है, वो तो मिडिल मैनों को तकलीफ हो रही है। आप बताइए, किस दिन हम किसान, जब 90 रुपए प्याज का भाव हुआ तो हम लोग आंदोलन करने के लिए खड़े हुए? जब प्याज का भाव 90 रुपए होता तो आम जनता को तकलीफ होती है, तब तो मीडिया और पूरा देश उनके साथ खड़ा होता, हम तो खड़े नहीं होते। फिर आज हम क्यों खड़े हो गए मीडिया मिडिलमैन के लिए? ये कहने की बात है, बनावटी बात है। सरकार तो ये पढ़े लिखे लोगों को जो अंग्रेजी का चैनल देखते हैं, अंग्रेजी का पेपर पढ़ते हैं, उनको गुमराह कर रही है। बात सीधी ये है कि ये किसानों के हित में नहीं है। आप एक तरफ पूरा सेंट्रलाइज की बात कर रहे हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम चाहिए। आप एक मॉल में परचेज करने क्यों जाते हैं? वहाँ आपको जींस भी मिलता है, खाने का सामान भी मिलता है, ओढ़ने का सामान भी मिलता है, बच्चों के खिलौने, ताकि आपका। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। इस समय स्थिति काफी गंभीर है, बॉर्डर एरियाज में काफी टेंशन है अभी इस वक्त, और ये एक एडेड चैलेंज बन गया है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एट अ टाइम व्हेन वी आर डीलिंग विद अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। अभिमन्यु कोहर एंड केदार सिरोही, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। After Arvind Kejriwal, Punjab Chief Minister has also tweeted on the crackdown on farmers in Haryana. Captain Amrinder Singh said in a tweet, "It's a sad irony that on Constitution Day 2020, the constitutional right of farmers is being oppressed in this manner. Let them pass, ML Khattarji, don't push them to the brink. Let them take their voice to Delhi peacefully." So that's the word coming out of the Chief Minister of Punjab, Captain Amrinder Singh. Well, we are getting ground reports from multiple locations. My colleagues are deployed across the border entry points for Delhi, and I have this report from my colleague Priyank from the Delhi border. Let's listen. The senior officials, including the DSP rank officers, are themselves on the ground with these police personnel. But what is happening is a big traffic issue for all those people. We just saw few ambulances moving from here, which was stuck for hours. There's a very heavy traffic jam, almost 10-kilometer traffic jam, which is on the stretch of the national highway, because every vehicle being stopped physically is a very difficult thing. What Delhi police is also focusing on is the registration number of the vehicles. All those vehicles we just saw, Chandigarh number plate vehicle was stopped. Earlier we saw that Punjab number vehicle was stopped. So that is the main thing for which they will have to focus. On the other side, we have also got to know that few of the MLAs from Punjab had gone to Gurdwara, Bangla Sahib. They are making the strategy to carry out another set of protests in the national capital. But in between that, people who are coming from Haryana to the national capital are facing huge issue because every vehicle being checked at the border.